Hello, my dear student. Welcome you here in this lecture number 83 for that topic, body fluids and circulation. Now, this is the last article from this topic we have to learn. That is disorders of circulatory system. That few disorders, but very, very important from exam point of view, and also we should have the knowledge as far as our life is concerned. Okay, so do prepare all that very properly. Do listen it carefully, do watch it carefully. The first is the hypertension. To know hypertension, you should know about the arterial blood pressure. क्योंकि ब्लड प्रेशर से रिलेटेड ये डिसऑर्डर है जिसको हम बीपी कहते हैं. बीपी इसका एब्रीविएशन ज्यादा पॉपुलर है, आर्टेरियल ब्लड प्रेशर. So you know that whenever the ventricles of the heart are pumping the blood forcefully into the aorta, left ventricle pumps into the aorta, right ventricle into the artery. At that time, the blood flows very fluently, speedily through that blood vessel. And at that time, the blood vessels are the closed tubes, you know. The force will get applied by the blood on this wall of blood pressure. Okay, on this wall of blood vessel. ब्लड वेसल के वॉल पे ये ब्लड फोर्स अप्लाई करेगा एंड दैट फोर्स अप्लाइड बाय द ब्लड व्हाइल फ्लोइंग थ्रू द ब्लड वेसल अगेंस्ट द वॉल ऑफ ब्लड वेसल पर यूनिट एरिया विल बी नोन एज आर्टेरियल ब्लड प्रेशर. सिंपल लैंग्वेज में क्या है? It is the force applied by blood on the wall of blood vessel through which it is flowing. पर अब देखो ये ब्लड जो फ्लो हो रहा है वो टिल्टेड मैनर में फ्लो होता है, एक लहर जैसी आती है वैसे. यानी whenever the left ventricle pumps, contracts, systole, at that time the pressure on that blood will be maximum. पर नेक्स्ट मोमेंट में जब वो वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाता है तो वो प्रेशर ऑटोमेटिकली गेट रिड्यूस. यानी वो ब्लड ऐसा जा रहा है, पंप किया आगे गया, फिर पंप रिलैक्स हो गया थोड़ा लिटिल बिट स्लो, फिर आगे, फिर थोड़ा लिटिल बिट स्लो, फिर आगे, फिर थोड़ा लिटिल बिट स्लो, लाइक दिस. एंड दैट्स व्हाई द ब्लड प्रेशर when measured has got two values. One is known as the systolic blood pressure or pumping blood pressure, when the heart is pumping the blood into the pumping pressure. Okay. And the other is known as the diastolic blood pressure, or that is also known as resting pressure. जब हार्ट का वेंट्रिकल रेस्ट कर रहा है, रिलैक्स हो रहा है एट दैट टाइम, तो ये ऑब्वियसली ज्यादा रहेगा. सो इन ए नॉर्मल पर्सन इट्स वैल्यू इज मेजर्ड एज 120 millimeter of Hg. 120 milliliter of Hg. Okay, and the another is there, particularly diastolic blood pressure, that is mostly found as 80 mm of Hg, and that is written most commonly as 120/80. Okay, or 120/80. इसको मैथमेटिकली डिवाइड मत करो, बायोलॉजिकली ये है ऐसा. अगर ऐसा आप करेंगे, वन ब्लड प्रेशर कितना आया है 120/80, दैट मीन्स इट इज 1.5. ऐसा उसका कैलकुलेशन मत करो, दैट इज रॉन्ग. ओके, ये जस्ट वैल्यूज है, न्यूमरल्स है. 120 mm of Hg is the systolic blood pressure and 80 mm of Hg is the diastolic blood pressure. समझ में आ रहा है? And that is the values given in the normal person at normal stage of the life, in normal young person. Okay, the BP value is, BP कितना आता है नॉर्मल 120
ऑब्लिक 80, 120 सिस्टोलिक, 80 डायस्टोलिक। अब क्या होता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जॉगिंग किया है, रनिंग किया है, ट्रेडमिल टेस्ट दिया है, isn't it? तो उसमें क्या होता है दैट पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव ब्रीथिंग एंड एक्सेसिव पंपिंग ऑफ द हार्ट, द बीपी वैल्यू गोज ऑन इंक्रीजिंग, पल्स रेट इंक्रीजेस। जो 72 का पल्स रेट है वो बढ़ते बढ़ते 85, 90, 95 ऐसे हुए होता है, और ब्लड प्रेशर भी बढ़ते बढ़ते जाता है, ये 120 वाला, 80 वाला भी। तो लेकिन इसे फीडबैक कंट्रोल से क्या होता है, वेन एवर वी स्टॉप दैट एक्टिविटी, वो एक्सर्शन हमने कम कर दिया है या हम रेस्ट कर रहे हैं फिर बाद में, सो ऑटोमेटिकली विद इन फ्यू मिनट्स दैट वैल्यूज कम बैक टू द नॉर्मल एंड अगेन इट फ्लोज नॉर्मली। ये नॉर्मल पर्सन में होता है, पर कई बार द रिपीटेड चेकआउट्स ऑफ द ब्लड प्रेशर वैल्यूज if do not show these normal values but show the values like 140 oblique particularly 90, इससे अगर ज्यादा बढ़ गया है, 140 90 से ज्यादा हो गया है, यानी 145 95 148 98 लाइक दिस, अगर ज्यादा हो गया है 160 तक भी जाता है, किसी का 170 में भी जाता है, और नीचे वाला अगर 100 के आसपास गया तो ज्यादा वो प्रॉब्लमेटिक रह सकता है। देन इफ इट इज परमानेंटली इंक्रीज, इफ परमानेंटली रिपीटेड ब्लड प्रेशर इज देयर, increased BP like greater than 140/90 or 140/90, then this condition is called as high blood pressure. इसे कहा जाता है हाई ब्लड प्रेशर, और दिस इज ऑल्सो नोन एज हाइपरटेंशन, इसे हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। एंड दिस इज जस्ट द इन्विटेशन टू द कार्डियक डिसीजेस, इफ नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली it may result into the heart attack or that CAD, coronary arterial disease and all. ये हार्ट की रिलेटेड जो बीमारियां है उसको एक प्रकार की चेतावनी है, अगर इंक्रीज ब्लड प्रेशर कॉन्स्टेंटली रह गया तो वो चेक करना चाहिए। द ब्लड प्रेशर इज चेक्ड बाय वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट स्फाइग्मोमैनोमीटर। वो फिजिशियन के पास जो होता है ना बीपी चेक करने का मशीन, उसे कहते हैं स्फाइग्मोमैनोमीटर या स्फिग्मोमैनोमीटर। अगर डॉक्टर के साथ हम बात कर रहे हैं और उनको अगर बता दिया आपका स्फिग्मोमैनोमीटर आपने कहाँ से लिया है, तो डॉक्टर भी हमारी तरफ देखेगा, यार इसको मालूम है ये क्या है, isn't it? वो ऐसा बलून से ऐसा पंप करते हैं, फिर ऐसे यहाँ पे जो लगाया हुआ बेल्ट है उसमें हवा भरती है, लाइक दैट, एंड देन प्रेशर वैल्यूज आर चेक ऑन द मर्क्यूरी हाइट लेवल। तो ये अगर परमानेंटली इंक्रीज हो चुका है, यानी रिपीटेड चेकआउट्स, अभी आज मैंने पहले आपको कहा था इफ यू विल परफॉर्म द एक्सरसाइज डेफिनेटली इट विल इंक्रीज बट अगेन इट विल कम बैक टू नॉर्मल, अगर आप नॉर्मल है तो। पर अगर किसी का नॉर्मल नहीं हो रहा है, यही वैल्यू बार बार आ रही है 140 और 90 के ऊपर, या वो वैल्यू 140 90 160 रहेगा 170 रहेगा, द ब्लड प्रेशर किसी में 200 के ऊपर जाता है, 220 अगर हो गया तो बिल्कुल समझ लो ब्रेन हेमोरेज हो गया, 220 mm ऑफ अगर सिस्टोलिक हो गया तो ब्रेन की कैपिलरीज फटाफट टूट जाती है, एंड दैट हेमोरेज ऑकर्स देयर, रक्तस्राव जिसको हम कहते हैं वो हो जाता है, ब्लीडिंग हो जाता है, एंड दैट कॉजेज द कोमा स्टेज, ओके, ब्रेन हेमोरेज। सो हाइपरटेंशन शुड नॉट बी टेकन लाइटली, उसको बिल्कुल देखना। अभी इसके सिम्टम्स तो हम कहते हैं स्वेटिंग आता है, लाइक दैट, नो प्रॉपर सिम्टम इज देयर, एंग्जाइटी बढ़ती है, इरिटेशन बढ़ता है, किसी का अगर इरिटेशन बढ़ रहा है, हमारे पर्टिकुलरली ओल्ड एज के जो लोग हैं उनका अगर इरिटेशन बढ़ रहा है तो उनको बिल्कुल कहना है कि आपका बीपी चेक करके ले दो, बार बार ऐसे। अगर शॉर्ट टेम्पर्ड हुआ है, शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन को ये ज़्यादा जल्दी हो सकता है, सो
बी साइलेंट ऑल टाइम। तो इसके रीजंस क्या है, कॉजेस क्या है, ये तो मैं तो कहता हूं बीपी जो है दैट जेनेटिकली जीन्स जो है वो बहुत ही कम मात्रा में इसको हम कहेंगे, लेकिन हमारी जो लाइफस्टाइल है वही बीपी को, हाई बीपी को इन्वाइट करती है, हाइपरटेंशन को इन्वाइट करने वाली। यानी नो एक्सरसाइज, एक्सरसाइज ही नहीं है शरीर को कोई। अभी आजकल तो ज्यादा हो गया, व्हीकल्स का हम यूज करते हैं, वॉकिंग बिल्कुल भूल गए हैं। ओके, और बैठे बैठे रिमोट की सहायता से हम पूरा काम करते हैं, जो भी एंटरटेनमेंट करना है, टीवी देखना है, लैपटॉप पे है, मोबाइल पे है, बस सीट देयर ऑन द सोफा एंड रीड दैट। तो इससे क्या हो जाएगा, ओवरवेट हो जाएगा पर्सन, जिसे कहते हैं ओबेसिटी। तो ओबेसिटी इज वन ऑफ द रीजन ऑफ हाइपरटेंशन, ओवरवेट। ओके, बाद में ये जो पर्टिकुलरली स्ट्रेस फैक्टर है वो भी बढ़ गया है आजकल, वो भी उसका रीजन है। बाद में डाइट में ये हैबिट जो है, स्मोकिंग एक्सेसिव, देन अल्कोहल, एक्सेसिव अल्कोहल, इवन एक्सेसिव कॉफी, या जिसे हम कैफीन वाले जो मटेरियल, चाय में भी रहता है कैफीन, थोड़ा कम रहता है, पर ये एक्सेसिव अगर ड्रिंक कर रहे हैं कॉफी या अल्कोहल या स्मोकिंग, 100 एंड टोबैको 101% जिसमें निकोटीन रहता है, दैट हाइपरटेंशन विल ऑकर वन डे और अदर। तो ये तो बिल्कुल सेल्फ इन्वाइटेड। और समझो कोई ये नहीं कर रहा है, एक्सेसिव सॉल्ट इज टेकन इन द डाइट। अगर एक्सेसिव सॉल्ट, पिकल्स बहुत खाते हैं बहुत सारे लोग, लुंड्स, ओके, तो उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में सॉल्ट रहता है, ऊपर से सॉल्ट ऐड करके लेते हैं, सो दैट विल डेफिनेटली, क्योंकि सॉल्ट ऑस्मोटिक प्रेशर आपको मालूम है बढ़ाता है, एंड दैट कैन इंक्रीज द हाइपरटेंशन। तो ये इसको हम बिल्कुल टाल सकते हैं, जीन्स को तो नहीं टाल सकेंगे, ओके, वो तो पेरेंट्स से आ गए। हेरिडिटी अगर है, समझो अनुवंशिकता, फादर को है, मदर को है, तो डेफिनेटली एक, लेकिन ओल्ड एज में आएगा वो, आफ्टर द एज ऑफ से 45-50 लाइक दैट वो आ सकता है। पर अगर जल्दी जल्दी आ रहा है तो वो हमारी लाइफस्टाइल उसके लिए जिम्मेदार है। सो बी कॉशियस अबाउट दैट। ओके, आई एम श्योर यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस lecture very properly. So do give me the likes and the shares, and do subscribe to my channel Kartesar Biology, and also subscribe to my channel Kartesar Chemistry. Thanks a lot.